Class 7 Math Video number Part 1. Now, here the chapter heading is Integer. So, before knowing the integers, what we have to know? Natural numbers. So, what is a natural number? Counting numbers are called natural numbers. For example, 1, 2, 3, 4, and so on. So, what is a natural number? A counting number is called a natural number. सिंपल से साधारण सा भाषा में अगर नेचुरल नंबर को बोला जाए तो जहां से हम लोग गिनती चालू करते हैं वहां से हम लोग उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो गिनती जनरली हम लोग कहां से चालू करते हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस आर कॉल्ड एज द नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के बाद में आता है होल नंबर। So what is a whole number? In a simple term, if we want to know what is a whole number, if we add zero in the counting number, means in the natural number, it is called as a whole number. Or in the other words, we can say a natural number along with a zero is called as the whole number. Example, simple thing is that we are writing a counting number, natural number, that is a 1, 2, 3, 4, that's till the infinity. We are reading this the number. So if we will add at the beginning, there is a zero. A zero is including. If we start 0, 1, 2, we start counting from the 0, 0, 1, 2, 3, then it will be called as the whole number. तो होल नंबर किसको कहेंगे? अगर नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर के आगे हम लोग 0 लगा देते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज द नेचुरल नंबर. नाउ द क्वेश्चन arises, is 1, 2, 3, suppose that is a 3, is 3 a whole number? The answer would be, is 3 a whole number? See, we can see 3 is also written here. So 3 is also a whole number, as well as 3 is also a natural number. If we ask, is 0 a natural number? No, because we start counting from the 1. So 0 is not a natural number. Now the term for the, let me get the duster. Now we came to know about the what is the natural number and what is the whole number. Now let's see the integers. So before knowing the integers, we should know the positive and negative number. Positive and negative number. So what is a positive means? Positive are those kinds of a number which carries a plus sign before them. And what is a negative number? Which carries a minus sign before them. Suppose that if you are writing 1, 2, 3, 4, 5. So if you are asking it is a positive number or a negative number, you can't say it is a positive. Why it is a positive? Because plus sign is hidden here. Plus sign is hidden here. 3 के आगे प्लस साइन छुपा हुआ रहता है. Means any number is always having a plus sign before it if there is a no negative sign. अगर उसके आगे -1, -2, -3, -4 लग जाए तो ये सब जिसके आगे माइनस लगा हुआ रहता है, that is called as the negative sign. Now we will come to the integers. Let me draw a number line. You have read from the before what is a number line. The number line I am taking in the middle as a 0. I mean 1, 2, 3,
4 5 1 2 3 4. So what is the integer? Integer is integer. What is the integer? Integer having the positive sign and the negative numbers are called as the integer. So you will ask, is an integer is a whole number? Yes. Why it is a whole number? Because from 0 to, if you are going from the, you will see the positive number. So what is the whole number? Starting from the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 till the infinity. Because it will start from the 0. 0 integer is also a whole number. If you will ask, is an integer a natural number? Yes, integer is also a natural number because it comes from here. Now, one thing we have to note it down and keep it in our mind. इस चीज को हम लोग दिमाग में रखना है. 0 is neither a positive number nor a negative number. यानी हम लोग को ध्यान में रखना है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि 0 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, तो 0 इज नीदर अ पॉजिटिव नंबर नीदर अ नेगेटिव नंबर. ना इतना जानने के बाद में हम इंटीजर्स के बारे में जान गए. अब हम लोग को क्या जानना है कि अब हम लोग को किस तरह से पता चलेगा अगर ये नंबर लाइन हम फिर से ड्रॉ करें. जल्दी से हम मिटा दीजिए, हमको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ रहा है. 1 2 3 4 1 2 3 4. Let's put the minus sign. So if you will see, this is my right hand, this is my left hand. Now, so if you will see from the 0, this is the number line. If we will go to the from the we will add the center. Center में क्या है? 0 है. 0 का अगर हम इधर से देखते हैं राइट साइड में, जब भी हम लोग बढ़ेंगे, कभी भी हम लोग राइट साइड बढ़ेंगे, इट विल हैव अ पॉजिटिव साइन. और 0 का अगर हम लोग लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, इट विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव साइन. Understood? Now we are coming to the another topic, absolute. 1 minute. Absolute value. What is the absolute value? Absolute value is an integer of an integer is neither a 0, never comes a negative sign. It never comes along with a negative sign. Suppose that there are two integers -3 and 3. So what is the formula of the absolute value? If we are doing, okay, again, now we had some little pause here. Now we are starting again. What is the absolute value? Absolute value of a number is that its value always comes as a 0 or as a positive. मतलब जो जिसका भी अगर आंसर आएगा या उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? या तो 0 आएगा या तो वो पॉजिटिव साइन कैरी करके आएगा. अगर किसी का भी नंबर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं अगर किसी का नेगेटिव वैल्यू माइनस साइन के साथ में अगर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है? गलत होता है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं ये दो क्वेश्चन दिया गया है, -3 और 3 दिया है, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है. तो व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज द क्वेश्चन नंबर A, दिस इज द क्वेश्चन नंबर B. So for the question number A, I am doing a solution here. So how to do a solution? -3 is here, -3 को लिखेंगे यहाँ और उसको अंदर में मॉड्यूल में डालेंगे. ये जो साइन है ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू साइन और मॉड्यूल. मॉड्यूल, ठीक है. अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे -3 को, तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ये जो मॉड्यूल का एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या होता है, कोई भी अगर साइन यहाँ रहेगा, ये हमेशा इसका साइन किस में चेंज हो जाता है? प्लस में.
कभी भी ये इससे बाहर आएगा। तो अगर मान लेते हैं यहाँ 3 है, 3 का इसका हम b का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली 3। ऑलवेज इट विल कैरी अ पॉजिटिव साइन। Now, let's carry forward. Comparison. Now, comparison means तुलना। कभी भी कोई हम लोग इंटीजर का नंबर का हम लोग तुलना करते हैं तो क्या करते हैं? किस तरह से नंबर का तुलना करते हैं? नंबर का तुलना हम लोग क्या करते हैं? वो बड़ा है या तो छोटा है, इसी तरह से तुलना करते हैं। तो किसी नंबर का अगर हम लोग तुलना करेंगे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो एक चीज को ध्यान में रखना है, अगर हम लोग राइट साइड का देख रहे हैं, अगर वो 0 से इधर का नंबर है, या सुनो, अगर 0 से इधर का नंबर है, मान लेते हैं वी आर कंपेयरिंग 1 and 3, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि नंबर साइड में अगर जितना राइट साइड का वैल्यू रहेगा, राइट साइड में जितना फार में रहेगा, दैट विल हैव अ ग्रेटर वैल्यू। सो ग्रेटर वैल्यू अगर कंपैरिजन करने दिया 1 and 3 का, ठीक है, 1 and 3 का, तो हम लोग देखेंगे कौन राइट साइड में ज्यादा दूर में कौन है? 3 है, तो व्हाट विल राइट? 1 इज ग्रेटर देन 3। तो एक चीज है, तो ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन हम लोग आगे भी आप लोगों को क्लासेस में बता चुके हैं। ये जो ग्रेटर देन का साइन होता है हम लोग कैसे पुट करेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन है ग्रेटर और कौन है लेस। तो हम लोग क्या करना है, सिर्फ एक फिगर को याद रखना है, जिधर मुंह खुलता है दैट साइड इज द ग्रेटर साइड, एंड जिधर उसका पूंछ रहता है दैट साइड इज द स्मॉलेस्ट साइड। तो यहाँ पर कौन बड़ा है? 1 और 3 में, तो 3 is the greater, so we has opened this side. Now if you are comparing from this negative left side one, which is the negative value, अगर हम लोग को पुट करने के लिए दे रहा है कि which one is the greater and which one is the smaller। अगर मान लेते हैं -3, compare the -3 and -1 and -3 को आपको कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है, तो आप किस तरह से कंपेयर कीजिएगा? सो -3, एक चीज को याद रखना है, इसमें जो वैल्यू 0 के जितना नजदीक होगा, यानी इस साइड में लेफ्ट साइड में 0 के जिस साइड में दूर ना होके नजदीक होगा, दैट विल हैव द ग्रेटर वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू अधिक होगा, वो बड़ा होगा, और वो जितना दूर में रहेगा वो उसका वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 क्या है? ज्यादा दूर में है, ये क्या है? होगा छोटा होगा। किससे छोटा होगा? -1 से। तो ऑब्वियस क्या है? -1 बड़ा होगा, तो -1 की तरफ बड़ा कर देंगे, खोल देंगे मुंह, और यहाँ क्या लिखेंगे? -3 इज द कंपैरिजन। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज अगर हम लोग करें तो 3 तरह का प्रॉपर्टीज होता है, कम्युटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये दोनों चीज के लिए लगता है, चाहे वो एडिशन के लिए हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन के लिए हो। तो क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b। कोई भी दो नंबर को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? उसका हम लोग को क्या आंसर आएगा कि वो आंसर सेम आना चाहिए, अगर कोई भी दो नंबर का हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इसमें से नॉर्मल क्या लगता है? क्लोजर में अगर मान लेते हैं इंटीजर ले लेते हैं, तो इंटीजर में हम लोग देखेंगे, अगर मान लेते हैं एक नंबर को हम लोग 5 लेते हैं, दूसरा नंबर को -3 लेते हैं, दिस इज द क्वेश्चन गिवन हियर, ऐड द टू नंबर 5 + -1 3। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरह का नंबर देंगे तो इसमें क्या होगा? अगर हम लोग प्लस करते हैं 5 ± -3 इज इक्वल टू आंसर 2। आंसर इज 2। तो एक चीज जानने से पहले हम लोग एक चीज और जान जाएंगे कि कभी भी हम लोग माइनस माइनस करते हैं तो हमेशा वो क्या आता है? प्लस में, लेकिन उसका साइन क्या रहेगा? साइन विल रिमेन माइनस। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर ये क्वेश्चन दे दिया -2 तो हम लोग क्या करेंगे? -2 को नहीं देखेंगे, हम लोग को दिमाग में ये फार्मूला को रखना है, माइनस 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 क्या होता है? प्लस,
तो हम लोग क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो हमको इसको भूल जाना है, उसका 2 + 2 = 4 और लास्ट में क्या है साइन विल रिमेन माइनस, माइनस साइन यहाँ पुट कर देंगे। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्या होता है प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, साइन हमेशा प्लस ही रहेगा, साइन विल रिमेन प्लस ना। उसके बाद क्या है प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। अगर हम लोग इसका ऊपर वाला एग्जांपल देखेंगे तो 2 + 2, तो ये आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए एग्जांपल देने हम उचित नहीं समझते थे, फिर भी एग्जांपल देते रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस देखेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, अब इसका वैल्यू क्या होता है साइन विल होल्ड who has greater value। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे, अगर इसका एग्जांपल ले लेते हैं तो एग्जांपल में क्या है एक प्लस और एक माइनस है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर 3 - 2, इसको हमको सॉल्व करने के लिए मिला है, तो इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब हमेशा इसके आगे आपको क्लासेस का शुरू में ही बताया गया था कि हमेशा इसके आगे कौन साइन रहता है प्लस साइन रहता है, इससे आगे कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस, क्या करना है 3 में 2 गया, कितना बचा 1। अब यहाँ पर मेन ट्रिक चालू होता है, जो चीज हम लोग फॉर्मूला में ध्यान देना है, साइन विल होल्ड हु हैज ग्रेटर वैल्यू, तो उसका साइन लगेगा जिसका वैल्यू अधिक होगा। तो उसमें हम लोग को जैसे इससे पहले हम आपको कंपैरिजन में बताए थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 बड़ा है 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, इसका साइन इसका आगे क्या था प्लस, इसका आगे साइन क्या लगेगा प्लस, दिस योर। अगर मान लेते यही क्वेश्चन में अगर यहाँ दूसरा क्वेश्चन रहता -1 रहता और इसको हम लोग सॉल्व करना रहता, तो क्या करते हैं 1 और -2 है यहाँ, तो यहाँ क्या होता प्लस माइनस माइनस, 2 में 1 गया आंसर 1, लेकिन इसका वैल्यू अधिक है 2 का वैल्यू अधिक है, इसका साइन क्या है माइनस, तो ये हो गया माइनस साइन। ना एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है 0 एडिंग 0, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। मतलब किसी भी नंबर का -2 + 0 करेंगे आंसर क्या आएगा -2, दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अगर 1 + 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो इसका आइडेंटिटी यही होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये जानना जरूरी है। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? इट इज एन इंटीजर इज एडेड टू द ऑपोजिट इज कॉल्ड एज द, इसका रिजल्ट क्या होगा हमेशा क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए 0। अगर मान लेते हैं -2 दिया हुआ है, इसमें क्या ऐड करेंगे जिसका वैल्यू आ जाएगा 0, तो इसमें हम लोग जैसे -2 है इसको कैंसिल करने के लिए अगर हम +2 करेंगे तो प्लस माइनस 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 होता है, लेकिन इसमें आंसर क्या आएगा 0। तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 का एडिटिव इनवर्स इज +2, मतलब जस्ट उसका उल्टा लिखेंगे। अगर प्लस, अगर क्वेश्चन पूछा है -3 का एडिटिव इनवर्स बताइए, इसका -3 है इसमें प्लस साइन डाल देंगे, और +2 का बोलेगा तो यहाँ क्या होगा एडिटिव इनवर्स -2। अब यहाँ तक आप लोग ने समझ गए। अब हम आप लोगों को कुछ यहाँ से इसका आगे में जो भी है अब एक्सरसाइज चालू होगा, तो एक्सरसाइज जो आप लोग को दिया हुआ है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन के नीचे में एक एक्सरसाइज का 2 फोटो आप लोग को मिल जाएगा, जिसको आप लोग को डाउनलोड कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 6 तक बना लेना है पूरा। 6 तक बनाने के बाद में हम अभी आप लोग के सामने सभी का एक-एक दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी बता देंगे, उसको देख के आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोग को 2 दिन का समय रहेगा पूरा सॉल्यूशन बनाने के लिए, और 2 दिन के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 तक का आप लोग चेकआउट कैसे कीजिएगा
आप लोग को टोटल का वीडियो आप लोग को अगला दिन में टोटल सॉल्यूशन बनाया जाएगा ब्लैक बोर्ड में, उसको देख के आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर। तो 1 नंबर में क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा लिखना है, जो आप लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2, 3, -1, -2 एंड 0। तो इसके लिए हम लोग को दिमाग लगाना है कि कौन बड़ा होगा 0 से। हम इससे पहले भी आपको बता चुके थे नंबर लाइन में कि असेंडिंग ऑर्डर से देखोगे तो 0 के जितना नजदीक में रहेगा वो, अगर मान लेते हैं इसको हम नंबर लाइन में लिखते हैं, फिर से ये नंबर लाइन में लिख रहे हैं, तो जनरली 2, 3 तक गया है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, यहाँ तक हम लोग चल गए। तो इसको चेकआउट करने के लिए आगे ही बताए थे, तो इस तरह का आप लोगों को करना नहीं है, ये आप लोगों को समझाने के लिए है, सिर्फ अभी समझाने के लिए आप लोगों को डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चेकआउट करेंगे कि सबसे असेंडिंग लिखना है, तो सबसे छोटा कौन होगा, इसमें क्या दिया हुआ है -2, सबसे किनारे में कौन है ये, तो सबसे छोटा ये है -2, उसके बाद छोटा है, तो छोटा होने के कारण हम लोग मुंह की तरफ बोलेंगे उधर, ठीक है। उससे फिर बड़ा कौन होगा -1, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा, देखिए 1 है वहां नहीं, 2 है, तो फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे, दिस विल बी योर असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मान लेते हैं ये नंबर लाइन नहीं बनाते तो दिमाग में हम लोग को याद रखना पड़ता है कि जिसका माइनस का जितना ज्यादा वैल्यू रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा, और प्लस वाला जिसका पॉजिटिव नंबर है जिसका ज्यादा वैल्यू रहेगा वो बड़ा होगा। इसमें जस्ट माइनस वाला में उल्टा हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, और पॉजिटिव वाला में सबसे बड़ा हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे छोटा कौन होता है -2, उससे फिर बड़ा कौन होता है -1, उससे बड़ा कौन होता है 0, उससे बड़ा कौन होता है 2, उससे बड़ा कौन होता है 3। दिस विल बी द आंसर। इसी की तरह में सेकंड क्वेश्चन है डिसेंडिंग नंबर, जो सेम तरह का आपको सॉल्व करना है, सिर्फ साइन बदल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन डिसेंडिंग में आता तो हम लोग इसको उल्टा लिखते हैं, 3 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 0, फिर क्या होता -1, फिर क्या होता -1। उसके बाद है राइट द 3 नंबर, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इससे पहले आप लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू का बताया गया था, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लिखना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, हमेशा उसका साइन किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, या तो 0 में आएगा। तो उसके आगे हम लोग को क्या डालना पड़ता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन डालना पड़ता है चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, ए नंबर का क्वेश्चन है, इसको चेंज करना है, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 के आगे क्या लगाएंगे, मॉडुलस लगाएंगे, हमेशा बाहर इसका साइन क्या निकलेगा प्लस। दिस इज योर एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके बाद है पुट द ग्रेटर साइन और लेस देन साइन, ये आप लोग अभी भी कर सकते हैं, अभी भी बताया हुआ है। ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, अब कोई भी इंटीजर्स को ऐड करना है। तो ये नंबर क्वेश्चन है 2, दूसरा बता देते हैं 1 एंड -3, इसको ऐड करना है, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ऐड करने बोला है तो ऐड का साइन वहां लगेगा, -3 रहेगा तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये दोनों, तो उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फिर से हम लोग चेक करेंगे प्लस माइनस, यहाँ पर और एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कोई भी नंबर जो ब्रैकेट के बाहर आता है, ब्रैकेट के बाहर में साइन रहता है, उसके आगे एक मल्टीप्लाई साइन रहता है। तो यहाँ पर -3 है, तो एक चीज फॉर्मूला याद कीजिएगा, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 है, 1 लिखिए, प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है, ब्रैकेट डाला हुआ है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई साइन है, प्लस इंटू माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस वैल्यू होता है उसका। उसके बाद क्या लिखाएंगे 3। अब उसके बाद फिर हम लोग फिर से चेक करेंगे, इससे पहले वाला जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, और यही पढ़े थे क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, प्लस माइनस करेंगे, 3 में 1 गया 2। उसके बाद साइन क्या लगेगा बताइए, जिसका वैल्यू अधिक रहेगा, किसका वैल्यू अधिक है। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग,
सेम तरीका है, सेम तरीका से आपको माइनस साइन डालना है और करना है. That's it. The video ends here. Your work is to complete the homework. You have only the 2 days to complete it. Because I cannot reach your home and cannot see whether you are making your homework or not. Try to complete, because when the school starts, when you will come to the school, it won't be taught again. If you will, it will be taught in a speedy manner. So try to complete it, Thank you.